Good morning, students. How are you all? Today we are going to learn chapter number 5, subject science, separation of substance. We have completed here. We have seen how to separate the tea, how to separate the boma and chili. As you can see here that butter is separated from the milk, and like that we have done different methods of separation. As you can see here, let us revise it. What are the methods of separation? So hand picking the stones and the grains are by which the help of a hand we remove the stones, which is known as a hand picking. Threshing, so by beating the grains on the hard surface, the grains are removed from it, by which we can known as a threshing. Like that wooling. So as you can see in the picture that a woman is standing on the table and throwing some grains from that, and from the air from which it passes, the hulk is separated and the grains are settled down, which is known as a wooling. Now like that there is a number 6, that is sieving. As you can see here, sieving is done by the sleeving, which we use in our home. For example, for the flour we use for roti, by which we do like this 5.6. And for making buildings, the stones with the bigger stones are removed and the small particles are separated, plumbers are separated from that, by which we can make the building. And then there is the sedimentation, decantation and filtration. As you can see here in figure 5.8, the glasses, first glass is as a sedimentation process where the soil has been settled down. Like that the filtration is done by the filter paper. And the another, that is decantation, so the soil is from which the water is removed from one glass to another glass, which is known as a decantation. Now today we are going to look at, and number 6 was evaporation, which we also seen before, that whatever the water is evaporated is known as the evaporation. And this is the filter paper which we are going to see today. Where is the filter paper? I have brought for you the filter paper, by which you can see how the filter paper looks like. Okay, now here you can see these are the filter papers by which we can filter the any solutions which we want. And so this, as you can see in the figure 5.9, as they have fold here, we can also fold this filter paper and we can filter any substance which where the solid is removed and the liquid is filtered from this paper. So these are the filter papers. Okay, you can see it, these are the filter papers. Now they have also shown here in evaporation that how the salt is produced. Common salt is produced by purification, and by the sea we get salt. And today we are going to do use of more than one method of separation. एक से भी ज़्यादा separation की method आज हम देखेंगे. We have studied some methods from the separation of a substance from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these method. हमें एक से भी ज़्यादा मेथड हमें पता होनी चाहिए कि जिस एक मेथड से नहीं होता तो दूसरे मेथड चल जाएगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस सेपरेशन ऑफ मेथड. सो एक्टिविटी नंबर 7 इज़ द अनदर मेथड. टेक अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड सॉल्ट. अब हमें मिक्सचर लेना है सैंड और सॉल्ट का. हाउ विल वी सेपरेट दिस? अब हमें कैसे सेपरेट करेंगे इस दोनों को? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस. हैंड पिकिंग से ये सेपरेट नहीं हो पाएगा. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट. हमें अब बीकर में ले लेना है. बीकर यानी यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीकर है.
इसमें हम दोनों को ले लेंगे और फिर वाटर ऐड करेंगे। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम समटाइम्स के लिए वो बीकर को रख देना है 5 और 10 मिनट्स के लिए। डू यू सी दैट द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम? अब आपको दिखता है कि सेडिमेंटेशन हुआ वो सैंड का, कि वो नीचे बैठ गया। तो द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशंस और फिल्ट्रेशन। जो भी डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से हमें ये सैंड हम रिमूव कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? अब हम डिकेंटेड, जो भी हमने डिकेंटेशन किया उसमें कौन सा लिक्विड होगा? तो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? हमें जो भी पहले मिक्सचर था उसमें था वो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। जो भी हमारे लिक्विड बचा है उसमें से हम सॉल्ट और वाटर को हम सेपरेट करेंगे। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू द केटल एंड क्लोज इट्स लिड। हमें अब केटल में ले लेना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ फिगर 5.13 में केटल लिया है, उसमें लीड को क्लोज कर देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम्स। अब केटल को हमें थोड़े समय तक हमें हीट करना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पोट ऑफ द केटल? अब आपको दिखता है कि एयर स्पोट से एयर बाहर आती है। तो टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस और ऑन इट। अब हमें देखो यहाँ पे फिगर में दिखाई देता है कि हम उसमें आइस ली है और उन्होंने किसी चीज़ से पकड़ा हुआ है। Hold the plate just above the spot on the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. अब हमें जो भी हमने अंदर लिया है वो सब कुछ इवॉपरेट हो जाना चाहिए, सब कुछ इवॉपरेट हो जाना चाहिए, जिसके कारण हमें सॉल्ट और वाटर सेपरेट हो जाएगा। When the steam comes in the contact with the metal plate cooled with ice, its consists and forms liquid water. अब जो भी यहाँ से वेपर निकलेगा वो ड्यू टू द आइस it becomes a water area, so it comes from droplets and falls in the beaker. The process of conversion of a water vapor into the liquid form is called condensation. जो भी वेपर में आया और लिक्विड बन गया उसको हम क्या कहेंगे? Condensation. This do you ever see water droplets condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? अब आपके घर में भी दिखाई देगा, जब भी अपनी मम्मी मिल्क बॉयल करेगी और आफ्टर बॉइलिंग इट शी विल कीप सम प्लेट और एनीथिंग। जब भी प्लेट आप निकालो तो आपको जो भी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे हम क्या कहेंगे उसको? इवॉपरेटेड वाटर। इसको हम क्या कहेंगे? इवॉपरेटेड वाटर। लुक वेन एवर यू डू इट। ओके, आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवॉपरेटेड वॉट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब जो भी वाटर हमने रिमूव हो गया, तो अब क्या होगा? बचा रहेगा इवॉपरेशन में? when have the separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation, जो भी हमने ये सेपरेट करने के लिए कौन सी चीज़ हमने सेपरेट करने के लिए ली? तो सॉल्ट, वाटर एंड सैंड, हमें तीन चीज़ ली ना सेपरेट करने के लिए। तो कौन सी प्रोसेस से हुई? डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन और कंडेंसेशन। ये चारों प्रोसेस से हमें तीनों चीज़ हमें फिर से मिल जाएगी। पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम while covering a salt mixed with sand. She has mixed a packet of a salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity number 7 to recover the salt. She found, however, that she could
recover only a small part of the salt that she had taken. When what could have been gone wrong? अब इसमें से क्या रॉन्ग हो गया होगा, क्या होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ? तो एक्टिविटी नंबर 7 ने जो भी किया है वो पहली ने किया था. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? अब वाटर डिजॉल्व करता है एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इन चैप्टर नंबर 4 वी कुड फाइंड दैट मैनी substance dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. जो भी substance हमें पानी में पिघल जाता है उसको हम क्या कहेंगे? soluble substance. What happens if we go on adding some more and more substance to fix a quantity of water? अब हमें डाल ही करेंगे तो क्या होगा उसका? तो let us see activity number 8. Activity number 8. You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. अब हमें क्या क्या चीज़ लेना है? A pan, spoon, water and salt. Pour half a cup of a water in a beaker. अब आधा कप हमें पानी लेना है बीकर में. Add 1 teaspoon of a salt and stir it. अब हमें जो भी एक स्पून स्टर कर वाटर में डालना है और हमें स्टर करना है. एड 1 until the salt dissolve completely. जब तक सॉल्ट डिजॉल्व ना हो जाए तब तक हमें स्टर करना है. अगेन एड अ टीस्पून ऑफ अ सॉल्ट एंड स्टर वेल. अगेन आपको सॉल्ट डालना है और स्टर करना है. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम. और एक ही टीस्पून एक ही टाइम पर हमने डालना है और स्टर करते रहना है. After adding a few spoons of a salt, do you find that the salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? आपको कई after few times, after some hours or after few minutes, you can see that the salt is not dissolved. Do it settle down? वो settle down होता है, आपको देखना है. If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. अब हमें जो भी वाटर हमने लिया है वो कई अमाउंट वाटर का अमाउंट से ज़्यादा हमें सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो पाएगा. ओके. द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सेचूरेटेड. हमें इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सेचूरेटेड. सेचूरेटेड यानी जो भी पिक पॉइंट होता है डिजॉल्व का उसको हम क्या करेंगे? सेचूरेटेड पॉइंट. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रॉन दिस लाइन. ओके. फ्रॉम हियर आई एम स्टार्टिंग टू ऐड सॉल्ट. हमने डाला और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो पाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सेचूरेटेड. Here is a hint as to what might have been wrong when Paheli tried to recover large quantities of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. जो पहेली को अब क्या हुआ कि वो कन्फ्यूजन में पड़ गए कि क्यों ये सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा है. तो उन्होंने क्या रॉन्ग हुआ है अंदर. तो उन्होंने देखा कि जो इट इज़ अ सैचुरेटेड फॉर्म वेर द सॉल्यूशन वेर द सॉल्ट डू नॉट डिजॉल्व मच. द अनडिजॉल्व सॉल्ट would remain mixed with the sand and could not be recovered. अब जो भी सैंड है उसके साथ मिक्स हो जाएगा और रिमूव नहीं कर पाएगा सॉल्ट. सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. अब उन्होंने क्या किया? और लार्ज क्वांटिटी ऑफ उन्होंने जो भी हाफ कप ऑफ वाटर लिया था उससे ज़्यादा उन्होंने पानी लिया. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सैंड salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help the paheli out. अब उसमें उन्होंने क्या कहा कि उसमें से ज़्यादा भी उसकी मेथड है, दूसरी मेथड है जिससे हम सॉल्ट ज़्यादा डिसॉल्व कर सके वो. तो एक्टिविटी नंबर 9. Take some water in a beaker and mixed salt in it until it cannot dissolve any more salt. अब इसमें भी
ऐसा बताया है कि जब तक डिजोल्व ना हो तब तक हमें सॉल्ट ऐड करना है और मिक्स करते रहना है. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन अ वाटर. इससे हम क्या मिलेगा, तो एक सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा जिससे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, उस वो मिलेगा. नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. अब हमें जो भी पानी जो भी हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है उसको हम गर्म करेंगे. व्हाट डू यू फाइंड, अब हमें क्या मिलेगा. व्हाट हैपन्स टू द डिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. हमें बॉटम एट द एंड एट द बॉटम ऑफ द बीकर व्हाट वी विल गेट. डज इट डिजॉल्व नाउ. अब हमें डिजॉल्व मिलता है डिजॉल्व सॉल्यूशन. इफ़ येस कैन यू सम एड मोर सम सॉल्ट बाय डिजॉल्विंग इट दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. अब हमें जो वो डिजॉल्व हो जाए पानी में हीट गर्म करने से, तो आप ऐड करेंगे सॉल्ट को ज़्यादा और हीट करेंगे, बराबर. लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. अब जो भी हॉट सॉल्यूशन हो गया उसको हम कूलिंग करने के लिए रख देंगे. डज द सॉल्ट अपीयर्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर्स अगेन. जो भी सॉल्ट हमने डिजॉल्व किया था वो बीकर के एंड पर जम गया है, वो हमें देखना है. The activity suggests that a large quantity of a salt can be dissolved in water on heating. वो बताते हैं कि ये एक्टिविटी में जब आप गर्म करोगे तो सब सॉल्ट अपने आप पिघल जाएगा. तो उन्होंने क्या देखा उसमें कि जो भी सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाए बाय हीटिंग. डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ अ डिफरेंट सॉल्युबल सॉल्ट. वो इक्वल अमाउंट में सॉल्युबल होता है, डिफरेंट होता है सॉल्युबल सब्सटेंस के सेम होता है. लेट अस फाइंड आउट. अब हमें वो फाइंड आउट करना है. तो एक्टिविटी नंबर 10. नाउ एक्टिविटी नंबर 10, टेक 2 glasses एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम. दोनों कप में हमें पानी लेना है, हाफ ऑफ कप. Add a teaspoon of a salt to 1 glass and stir till the salt dissolve. एक ग्लास में हमें सॉल्ट लेना है और स्टर करना है पानी जब तक वो डिजॉल्व नहीं हो जाता. गो ऑन एडिंग सॉल्ट ऑन 1 teaspoon एट अ टाइम. हमें एक टाइम पर एक ही टीस्पून डालना है. दिस टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स. जब तक तो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है तब तक हमें डालना ही है और स्टर करना है. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2. अब 5.2 में जो भी जितने भी टीस्पून अपने डाले हैं वो हमें यहाँ लिखना है. नाउ रिपीट द सेम विद द शुगर. अब शुगर के पास भी आपको स्टर करना है, जितने स्पून वो डिजॉल्व हो जाए वो आपको यहाँ पे लिखना है. वट डू यू नोटिस दैट फ्रॉम द टेबल 5.2. अब 5.2 में से आपको क्या नोटिस होगा. डू यू फाइंड दैट द वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट्स. तो आपको पता चलेगा कि कौन सा अमाउंट में कितना पानी में कितना डिजॉल्व होता है. We discuss a few methods of separating substance. Some of the methods of separation presented in these chapters are also used in the science laboratory. जिसमें यहाँ से हमने कितने सारे मेथड यूज़ करिए, इसमें से आधे हमें साइंस के लेबोरेटरी में उपयोग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सब्सटेंस इन अ लिक्विड. हमें जो भी सॉल्यूशंस हम लेते हैं वो डिजॉल्व होते हैं सब्सटेंस, वो हमें लिखना है. अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ देम सब्सटेंस इन इट. सैचुरेटेड सब्सटेंस कब कहला जाता है, तो जो भी सॉल्यूशन डिजॉल्व बहुत सारा डिजॉल्व नहीं होता और कम से कम सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है, वो हमें क्या कहेंगे, सैचुरेटेड. और यहाँ पे कीवर्ड्स दी गए हैं. churning, condensation, decantation, evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving, solution, thrashing and pooling. These are the words you have to learn and write down in your notebook. So thank you.